friends, I hope you all are enjoying the financial statements of partnership firm with your own account mate Kirit Karya on YouTube channel Sum Edu. Friends, in the last period, what we have discussed, हमने क्या डिसाइड किया था, क्या समझा था? तो पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यस्टरडे के पीरियड में, लास्ट पीरियड में हमने we have learnt very nicely how to prepare partners capital account as per fluctuating capital method and how to learn partners capital and current account as per fixed capital method. So friends, today it's time to learn balance sheet. So before we switch on to balance sheet, please write down two statements about balance sheet in your notebook. I'm dictating you, please write down. ठीक है, चलो देखो, टाइटल बैलेंस शीट. At the end of the year, closing balances, closing balances of personal accounts as well as assets accounts. Closing balances of personal account as well as assets accounts are shown in a statement, called balance sheet, which reflect the financial status of the business. ठीक है दोस्तों, अब आपको पूरे एक पेज में बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, लाइक दिस. Here it is. Balance sheet of so and so firm as on so and so. And you know that, friends, this is a sheet, means a statement. It's not an account. So never say it's a debit side and credit side. Always say it's a liability side and assets side. ठीक है, तो एक ऐसा ड्रॉ कर लो, फिर हम इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से. Alright, giving a minute, stay with, connected with the period. Alright, 1 minute for all of you. दोहराएगा मित्रों, have you finished? Yes. Now
This side is called liabilities side. Okay, now liabilities side reflect that how much investment is there in partnership firm. If we go on see in a larger way, who invest in the firm? The very first, owners. Okay, तो पहले हम देखते हैं ओनर ने यानी ओनर्स ने कितना इन्वेस्ट किया. फर्स्ट फॉर्म लिखो स्टार करके कैपिटल. दिस इज अ टाइटल, सो राइट डाउन द टाइटल इन कैपिटल. राइट, कैपिटल इन कैपिटल लेटर्स. Now how much is the closing capital of A? From where we have derived capital account. How much is the capital of B? From capital account. Show both capital, make total over here. Please do write. I have just written so we can be very comfortable. Alright, so first write capital A of this much, B of this much, total this much. Clear? Have you written? Okay. Now if any partner, if firm has adopted fixed capital method, okay, तो पार्टनर्स की करंट अकाउंट की बैलेंस भी होगी. इफ पार्टनर हैज करंट अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस, then it will be shown here because this is again investment in the firm in the form of current account by the partner. Okay, fine. Then the third thing, reserves. This is the profit that firm has not distributed to partners but kept aside. ये ऐसा मुनाफा है दोस्तों जो फर्म ने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया है, डिवाइड नहीं कर दिया है, उसको अलग रखा है आने वाली कोई भी सिचुएशन के लिए. तो ऐसे रिजर्व्स क्या हो सकते हैं, लिखते जाना दोस्तों ब्रैकेट में. जनरल रिजर्व, द सेकंड वन रिजर्व फंड. जनरल रिजर्व यानी जो पैसा आपने अलग रखा है वो फर्म में पड़ा है, अगर इसको हम बाहर इन्वेस्ट कर दें तो उसका नाम बदल जाता है. इट इज कॉल्ड रिजर्व फंड. या रिजर्व्स एंड प्रोविजंस के लेसन में 11th में हमने ये पढ़ा था. याद नहीं है कोई बात नहीं, याद कर देते हैं, है ना. तो दोस्तों जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, WACF, सॉरी, दैट इज व्हाट, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड. अगर आपका फर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वर्कर्स काम कर रहे हैं दोस्तों. अब जब वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसका कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो रेम्यूनरेशन आपसे मांगेगा, है ना. वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, कंपनसेट करना पड़ेगा आपके उस लॉस के बदले में. तो उसके लिए आप फर्म क्या करती है, प्रॉफिट सेपरेट रखती है कि अगर वर्कर का एक्सीडेंट हुआ तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए या हमें इतना पैसा अलग रखना है. बट मान लो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो ये प्रॉफिट किसका है, ऑनर्स का है. तो ऑनर्स का प्रॉफिट यहाँ फर्म में इन्वेस्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड WACF. फिर से एक बार, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड. तो ऐसे जितने भी हमने प्रॉफिट असाइड रखा है तो ये सारे नाम वाले इसको रिजर्व्स कहते हैं. ये इतना टोटल अमाउंट हमारा फर्म में एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टेड है. तो देखा दोस्तों ये तीन जो टाइटल है ना, यहाँ फिर से मैं कर रहा हूँ. पहला टाइटल कैपिटल बाय पार्टनर, करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस बाय पार्टनर, एंड रिजर्व्स. दिस इज ऑल्सो not directly but indirectly partners fund. ये तीन जो टाइटल है ना आप दिख रहे हैं, ये तीन टाइटल्स की जितनी भी अमाउंट आ रही है, दिस इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्म बाय ओनर्स मींस पार्टनर्स. अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़ा उस लेवल से बैलेंस शीट को समझेंगे. ठीक है दोस्तों, फाइन. अब आता है द सिचुएशन इज जो बाहर वालों ने यानी अपार्ट फ्रॉम पार्टनर्स, थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं, है ना, उन्होंने हमारे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है. तो फर्स्ट टाइटल इज नॉन करंट लायबिलिटीज. टाइटल लिखो फ्रेंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज. ठीक है. अब ये क्या बताता है कि ये ऐसी लायबिलिटी है जो मोर देन 12 मंथ्स बिजनेस में इसका पैसा रहता है. ठीक है.
more than 12 months, नॉन करंट, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म। पहले इसका नाम था लॉन्ग टर्म, अब इसका नाम हो गया है नॉन करंट। इसमें क्या आएगा? फर्स्ट थिंग लिखो बैंक लोन, फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि I have a limitation of the space over here. So bank loan, loan from financial institution, then partners loan, that is also long-term liability. Then other loan means loan from friend, loan from wife, or loan from any relatives. I have mentioned other loan, etc. So this is called our non-current liability. ठीक है, तो जब हम लंबे समय के लिए किसी से भी पैसे लेते हैं लोन के स्वरूप में, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाती है। और ये पैसा हमारा बिजनेस में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, फाइन। और लास्ट टाइटल फ्रेंड्स, करंट लायबिलिटीज, यानी ऐसी हमारी जवाबदारियां जो हमें 12 महीने से कम समय के अंदर पे करनी है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अब नाम हो गया इसका करंट लायबिलिटीज। तो इनमें क्या क्या आएगा, एक बार लिखते जाइए। क्रेडिटर्स, यानी जिनसे हमने माल लिया है, सेवा ली है, पैसे नहीं दिए हैं। बिल्स पेबल, दैट अनदर फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स, राइट। फिर बीओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक से हमने ओडी इस्तेमाल किया है। ओएस एक्सपेंसेस मतलब outstanding expenses. Please do write in your notebook, right? Outstanding expenses. Then incomes received in advance. ऐसी इनकम जो हमें इस साल मिल गई है बट वो आने वाले साल की है, that is incomes received in advance. फिर workers profit sharing fund. Workers प्रॉफिट शेयरिंग फंड और वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये दोनों में कंफ्यूजन साहजिक रूप से हो सकता है, पर समझेंगे तो कंफ्यूजन होने वाला ही नहीं। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड यानी दोस्तों ऐसा फंड जो हम वर्कर्स को प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं, यानी कई पीढ़ियां, कई कंपनियां अपने वर्कर्स को मजदूरी के साथ साथ उनको प्रॉफिट में हिस्सा भी देते हैं। तो ये प्रॉफिट उन लोगों का है जो अभी हमारे पास पड़ा है, जब इकट्ठा हो जाएगा तब उनको अलग अलग जरिए से थ्रू डिफरेंट मीन्स हम उसको दे देंगे। तो तब तक ये हमारे पास जो प्रॉफिट पड़ा है ना दोस्तों, ये हमारी लायबिलिटी है। क्या आने वाले कई कंपनियां या पेड़ियां कैसे करती है कि भाई प्रॉफिट तो फाइन करती हैं 31 मार्च को, तो देती हैं दिवाली के समय में ताकि मजदूरों को काम आए, या उनका जो भी उस समय का त्योहार है उस समय में। दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंस, बट इन कमिंग पीरियड्स ऑफ 3 to 6 months कंपनी इज गोइंग टू पे देम। सो दिस इज योर फॉर श्योर लायबिलिटी। वहां ये था WSCF में कि अगर एक्सीडेंट हो तो ही कंपनसेशन देना है इस फंड से, ये तो उनका ही है, उनको ही देना है। ऐसे ही हम वर्कर्स सेविंग अकाउंट्स, कई पेड़ियां और कंपनी वर्कर्स को लेकर बहुत पॉजिटिव होती है, उनका बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि ये मानते हैं कि ये वर्कर्स ही है जो हमारी फैक्ट्री को सही रूप में चला रहे हैं। दे आर द रियल फाउंडेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिजनेस यूनिट। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ देम। ठीक है दोस्तों, ये एक सोच है अपने आप में। तो उनका सेविंग्स अकाउंट्स कंपनी मैनेज करती है कि भाई आपका इतना हम कंपलसरी सेविंग करेंगे, अदरवाइज क्या करोगे, आप जितना कमाओगे उतना खर्च कर दोगे। तो ऐसे कोई अकाउंट्स अगर मैनेज हो रहे हैं तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। ऐसे ही एक मैटर आपको लिखना होगा, प्रोविडेंट फंड। यस, दिस इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखा आपने ध्यान से कि दिस इज, ये किनका फंड है, यहां तक का जितना फंड है वो किन लोगों का है, ओनर्स का है, 1, 2 and 3, है ना। मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन दे दूं 1, 2 and 3। और ये जो है 4 and 5, ये आउटसाइडर्स का फंड है।
तो ये ऑनर का फंड, ये आउटसाइडर का फंड, टोटल मिला के हमारा इतना पैसा इन्वेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि 20 lakhs इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ किसी भी स्टूडेंट को ये सवाल हो सकता है कि सर ये 20 लाख हमने बिजनेस में डाल दिए, फॉर एग्जांपल 15 लाख ऑनर्स ने डाले, 5 लाख हमने बाहर से मैनेज किए। आज के दिन में ये डेट जो लिखी है वो दिन में हमारे 20 लाख रुपया फॉर्म में इन्वेस्ट है। तो सर बताओ तो सही वो 20 लाख है कहां? इसका जवाब देता है आपको बैलेंस शीट की दूसरी साइड। इसी नजरिए से हमें बैलेंस शीट को देखना है ना। तो बैलेंस शीट की दूसरी साइड इज असेट साइड, जहां फर्स्ट हम दिखाएंगे कि हमारा पैसा नॉन करंट असेट्स में कितना लगा है। प्लीज दोस्तों टाइटल लिख लीजिए, नॉन करंट असेट्स। और दोस्तों नॉन करंट असेट्स में यानी ऐसी असेट्स जो लंबे समय के लिए बिजनेस में रहेगी, लॉन्ग टर्म असेट्स, यस, मोर देन 12 मंथ्स। अब इसमें फर्स्ट ऐसी 3 है, 1, 2 and 3, कैन यू सी? तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यहां मैं इसके ऊपर ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, 1 इज फिक्स्ड असेट्स, यानी जो असेट आज ये बोर्ड है तो ये फिक्स्ड असेट है, क्योंकि ये बोर्ड कल भी था, आज भी बोर्ड है, कल भी बोर्ड ही रहेगा। इट्स नॉट चेंजिंग, फॉर्म रिमेन्स फिक्स, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स। तो इसमें पहली कैटेगरी है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स मीन्स जो असेट्स को हम देख पाते हैं, छू कर महसूस कर पाते हैं, इन सब को हम टेंजिबल असेट्स कहेंगे। तो लिखा आपने टाइटल, फिक्स्ड असेट्स, फिर ए टेंजिबल असेट्स। उसमें कौन कौन सी है ब्रैकेट में लिखते जाओ, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, यस, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, डेड स्टॉक एटसेट्रा। ये सारी हमारी टेंजिबल असेट्स हैं दोस्तों, ठीक है। अब आफ्टर दैट द सेकेंड फिक्स्ड कैटेगरी इज intangible assets. So please provide a suitable title with B, intangible assets. जी दोस्तों, तो intangible assets means these are the fixed assets which are in the business for a longer period of time, but they cannot be visualized directly. We cannot touch and feel. ऐसी assets को हम कहते हैं इंटेंजिबल असेट्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइसेंस। आज गुजरात है तो इट्स you know that it's a dry state. Liquor is prohibited here. Alright? So friends, फिर भी अगर कई होटल्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, यूनिट्स ऐसे हैं सॉरी, जो बेचते हैं इसको, they have license to sell. अब ये लाइसेंस है तो उनका माल बिकता है, लेने वाले लीगली वहीं से ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट लाइसेंस इज व्हाट, कोई भी काम करने का ऑथोराइजेशन फ्रॉम द ऑथोरिटी। तो ये कहाँ आपको कहाँ दिखता है, उस क्या मिल रहा है, यू हैव अ राइट, ऑलराइट। तो लाइसेंस है, ऐसे कितने सारे हैं, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, प्लीज डू राइट गुडविल, डू राइट पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, यस, ये सारे क्या कहा जाते हैं, इंटेंजिबल असेट्स, यस। नाउ वी आर स्विचिंग ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ नॉन करंट असेट्स। द फर्स्ट कैटेगरी वी हैव लर्न, फिक्स्ड असेट्स में हमारे टेंजिबल असेट्स में इतने पैसे लगे हैं, इन्वेस्ट हो गए हैं, इंटेंजिबल में इतने इन्वेस्ट हो गए हैं। Second category is investments. If we have surplus fund, then what we do, rather than keeping them idle, मतलब उसको ऐसे ही रखने से बजाय इसको कहीं इन्वेस्ट करें ताकि कुछ पैसा हम और कमा सकें।
तो इन्वेस्टमेंट्स टाइटल लिखा, इसमें लिखो ब्रैकेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑलराइट, देन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, BONDS, बॉन्ड्स लिखते जाना, हाँ, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, PF इन्वेस्टमेंट्स, अवश्य लिखना, PF इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों जी। और इसमें तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज अदर्स। कैन यू सी फ्रेंड्स, अदर्स। अब इनको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। अदर्स में क्या आएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब आई एम श्योर दैट यू माइट हैव फॉरगॉटन, आप भूल गए होंगे, ये भी हो सकता है आप भूले ना हो। सो व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस? दोस्तों कई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी मानती है, पेढ़ी मानती है कि इसका लाभ, इसका बेनिफिट आने वाले कई साल को मिलेंगे। एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे एक पेढ़ी ने बहुत बड़े पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, करीबन ऐसा मान ले हम 30 लाख रुपीस का। अब दोस्तों 30 लाख रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट फर्म ने किया, सॉरी एक्सपेंस किया एडवर्टाइजमेंट में, अब फर्म ऐसे मान रही है कि इसका बेनिफिट आने वाले 3 साल तक पीढ़ी को मिलता रहेगा। ठीक है ना। अब एक्सपेंस का बेनिफिट विल बी टेकन बाय 3 years, तो रीजनेबली इसको 3 साल में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो हाउ मच फर्स्ट ईयर विल बेयर, 10 lakhs. How much second year will bear 10 lakhs. And friends, how much third year will bear 10 lakhs. ठीक है। तो दोस्तों अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है, ध्यान से समझना, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, 30 lakhs है, तो आप कितना ले जाओगे क्लोज करके, तो आप ले जाओगे 10 lakhs बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी कितनी रही इसकी बैलेंस, 20 lakhs बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये जो बैलेंस है ना दोस्तों, ये जो 20 lakhs, ये हम यहां दिखाएंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में। क्या लिखेंगे पता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ उसको बोलते हैं अकाउंट की भाषा में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिटन ऑफ, WRITTEN OFF। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिटन ऑफ। और ये 20 लाख रुपया हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले गए, क्योंकि आने वाले 2 साल को भी इसका और बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसको हम एज एन असेट लिखेंगे। असेट का काम क्या होता है, जो बिजनेस को लंबे समय तक बेनिफिट दे, उसी को तो नॉन करंट असेट कहते हैं। या ओके, अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, फिर से 20 lakhs में से 10 lakh प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, राइट। तो बाकी कितना बचेगा, 10 lakhs। ठीक है, तो इसको अदर्स में हमने दिखाया है कि ये भी लंबे समय तक बेनिफिट देती है। आज मैं बात करूं दोस्तों, तो राइट नाउ वी आर इन अ लॉकडाउन सिचुएशन एंड फ्रेंड्स, मैंने अभी तक बात इसकी नहीं छेड़ी है, बस आज एग्जांपल दे रहा हूं कि कोविड-19 की जो इफेक्ट है ना दोस्तों, वो श्योर शॉट है कि लंबे समय तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन के समय में ही। वी हैव टू बी केयरफुल मोर एंड मोर, द यूज ऑफ मास्क, ओके, द यूज ऑफ ग्लोव्स, the use of sanitization, the habit of washing hands again and again, to maintain social distance as much as possible it is, to avoid the social gatherings, to avoid where people are gathered in a more numbers, to avoid a
kind of entertainment where people are much in numbers. These all things we have to take care for the coming months even, and maybe for 1 or 2 years. We can't say right now. अब ऐसे में कोई फर्म ने ले लिया अपनी जगह के भाई हमने सैनिटाइजेशन ट्यूब बनाया है, मतलब आज मान लो आई एम रनिंग अ स्कूल, आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आई विश दैट कि मेरा हर एक बच्चा इंस्टीट्यूट में आए तो सैनिटाइज होके आए, तो आई हैव मेड अ सैनिटाइज ट्यूब और टनल। अब जो फील्ड ये काम कर रही है, कोई भी कंपनी या पेड़ी, ओके, जो सैनिटाइज्ड टनल बनाती है या उसके सारे इक्विपमेंट्स बनाती है, उसने जोर शोर से अभी एडवर्टाइजमेंट कर दी हर जगह ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी मीडिया है हर जगह, तो क्या होगा? वो जानती है कि आने वाले 2 साल 3 साल तक हमें इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, है ना। आने वाले समय में ऐसे दृश्य हम देखें तो चौंक न जाएं कि हमको ये टनल में से पसार बनाए, ट्यूब में से पसार बनाए, ऐसी बनाई कैबिनेट में से पसार होना है ताकि हम सैनिटाइज होके जा सकें। This would be the demand of time, friends. तो आने वाले 3 साल तक उसको बेनिफिट मिलता रहेगा, है ना। Do you agree with me or not? ये एकदम लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मुझे बात छेड़ना अच्छा नहीं लगता है कि बार बार एक ही बात क्यों, बट दिस इज द सिचुएशन दैट माई एवरी स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इज वेल अवेयर, सो दिस इज आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल। तो आने वाले समय में ऐसी कंपनियां जो ऐसे इक्विपमेंट्स के साथ जुड़ी हैं, वो आने वाले समय में इसका डेफिनेटली एडवांटेज लेंगे। तो असेट का काम ही यही है। तो हियर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज एन असेट, ठीक है। ऑलराइट, फाइन फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम यहाँ ध्यान से इसको समझेंगे, ये टॉपिक आई एम श्योर दैट समझ में आ गया। फिर भी हमारे सम करते समय अगर ये हमारे सामने आया तो उसको फिर से एक बार और समझेंगे, है ना। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, इसमें 2 ही कैटेगरी है, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। In current assets, which are the assets which are in the business for very short period of time, और इसका स्वरूप भी बदलता रहता है। आज मेरे पास कैश बैलेंस है, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो उसका स्वरूप बदल गया, वो बैंक बैलेंस हो गई। मैंने उससे माल परचेज कर लिया तो वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, है ना। वो स्टॉक मैंने अपने कस्टमर्स को दे दिया, बट पैसा वहां से नहीं आया तो मेरे डेटर्स बन गए। सिक्योरिटी के लिए मैंने डेटर्स से बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया तो ये मेरा बिल्स रिसीवेबल बन गया, है ना। फिर वहां से पैसे आया तो फिर वो बैंक में गया। तो दिस इज द चेंजिंग ऑफ फॉर्म। करंट असेट्स आर द काइंड ऑफ असेट्स लाइक दिस। अच्छा सर ऐसा है, इतना डिटेल से तो हम समझे ही नहीं है। दोस्तों डिटेल से समझोगे, है ना। मेरी तो यही एक आप बोल सकते हो कि माइनस साइड है, मुझे ऊपर ऊपर से समझाना नहीं आता है। कई बच्चे कहते हैं सर ऊपर ऊपर से समझाते, I can explain with the full of details. And I'm sure that once you learn, you will never forget. और अभी आप कहोगे सर अच्छा पीरियड पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। Yes, that is the real joy of the actual fundamental learning. You are learning fundamentally accounts with your own account mate, Kirit Karya, on your favorite YouTube channel, Sum Edu. Just keep enjoying. अब दोस्तों यहाँ करंट असेट्स में क्या क्या आएंगी? क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, उसका दूसरा फॉर्म बिल्स रिसीवेबल्स, प्लीज लिखते जाओ, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और अदर आइटम्स, जैसे मेरे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज आइटम्स भी है, स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स भी है मेरे पास। मैंने भाई 40,000 पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए थे, 10,000 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए तो 30,000 मेरे पास अभी पड़े। दिस इज योर असेट, या सो दैट्स लूज टूल्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, दीज ऑल आर करंट असेट्स, ठीक है। और लास्ट में करंट अकाउंट। अगर कोई भी पार्टनर की करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस हो दोस्तों, मतलब हमें उतने पैसे उनसे लेने हैं, इट्स अवर रिसीवेबल्स। असेट्स एंड रिसीवेबल्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये करंट अकाउंट मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिया है, बी की डेबिट बैलेंस है तो वो यहाँ दिखाएंगे। अब दोस्तों 20 लाख में से फॉर एग्जांपल फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल असेट्स में 8 लाख हमारे इन्वेस्ट है,
यहाँ 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, यहाँ ये रियल इन्वेस्टमेंट में हमारे 5 लाख है, अदर्स में शायद कुछ नहीं है, और बाकी के 4 लाख हमारे अदर करंट असेट्स में है, और बाकी जो 1 लाख इन्वेस्ट नहीं है वो कैश और बैंक के फॉर्म में पड़े हैं। तो टोटल इसका कितना आने वाला है? 20 lakhs ही आने वाला है। दिस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ फंड। पैसा बिजनेस में कहां से आया और कितना हमने बिजनेस में लगाया, हाउ मच वी हैव इन्वेस्टेड। और ये साइड रिफ्लेक्ट करता है where we have utilized our fund. In accounting terminology, friends, it is called as application of fund. This is called source of fund. This side is called application of fund. This is the way we should understand balance sheet. पैसा कहां से आया, कितना आया, पैसा कहां लगा, कितना लगा, और जो नहीं लगा है वो यहां पड़ा है, टोटल इसका सेम आना चाहिए। That's why it may be said बैलेंस शीट, ऐसा स्टेटमेंट जिसका दोनों साइड का टोटल इक्वल ही रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे ये तरफ से ये एक्सप्लेनेशन? आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट। ओके, देयर इज नो डाउट एट ऑल। सो फ्रेंड्स, कीप शेयरिंग, राइट, liking this education channel, SumEdu. Share with your friends so the level best interior part students can also take advantage. तो दोस्तों मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, डोंट डिस्कनेक्ट द वीडियो। एक बार फिर से बैलेंस शीट कहीं कुछ छूट गया है लिखना, लिख लीजिए। आई एम गिविंग 2-3 minutes and I will again revise it. Take care. So yes friends, I conclude with the explanation of balance sheet. I'm sure you all have liked it very much, alright, and revise the video as and when you wish, because this is the facility with you from your favorite account mate Kirit Karyas. Take good care. Bye bye everyone. We'll meet in the next period with the fantastic explanation of adjustments, the very well soulful part of the financial accounts. Bye.